Normally, when we say effects of mass media, people would like to talk about effects of mass media, that you give too much of time to phones, you give too much of time to TV, and then you are more involved in such kind of, you could say, it's more like time waste. You are using your time to sit and watch TV, or you're using your time for digital activities, like you're surfing on websites, you're using your phone, you're listening to music. But effect of mass media is not limited to such kind of very generalized ideas. Or if we say that the effect of more sensationalized news, or effect of more vulgar content or adult content on different channels of media, then it is not the point. Effects of mass media or influence of mass media is a very complex term, and it has to be understood with its कॉम्प्लेक्सिटीज. यानी कि जब हम इफ़ेक्ट्स ऑफ मास मीडिया की बात कर रहे हैं, तो हम उसको इस तरीके से जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगर आप ज़्यादा घंटे बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू more negatively. And if you're just sitting there and watching for maybe an half an hour, or maybe for a few minutes, then it is not going to impact you. The point is not that. Or you're using more phone, then you are going to become addicted. इतने इतने easily हम sum up नहीं कर सकते हैं mass media के effect को. And normally you will see that people talk about negatively for TV, for films, and for mobile phones. What about the endless content available to each and everyone who has access to internet today, and specifically with this boom of smartphones? And what about the kind of effect print media or very normal day-to-day advertising has on people? What about the specific use of media during elections and political rallies or campaigns and such kind of political activities? What about effect of different means of communication used by very business mindedly, or a very interest mindedly channelized channels of mass media? For example, a company is owning newspaper, a company is owning a TV channel also, and then that is serving content to people. What kind of intentions or selfish intentions these kind of companies or these kind of owners can have for their benefit, for money making? So a lot of things are involved, and this is what Dennis McWell is talking about it here, that normally when we say effects of mass media, we never talk about the point that the effect of mass media cannot be talked more clearly until unless you're talking about the understanding. Those who are researching about this influence, do they have proper understanding about the subject? सबसे पहली बात कि जो इस इफेक्ट को लेके बात कर रहे हैं, क्या क्या उनको पूरी तरह से समझ है मास मीडिया के बारे में, लोगों की जो साइकोलॉजी है, मानसिकता है, उसके बारे में, सोशल सेटिंग के बारे में, कल्चर के बारे में, और उसके अलावा जो मीडिया मैसेजेस को प्रोड्यूस करते हैं, और जो एक कंट्री में या एक नॉर्मल सेटिंग में मीडिया पॉलिसीज को बनाते हैं, उनको कॉन्टेक्स्ट में लिए बिना आप इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया के बारे में बात नहीं कर सकते. फॉर एन एग्जांपल, if we take if we take the example of North Korea, there the media is totally controlled by the हेड ऑफ द कंट्री. जो वहाँ के हेड है, पॉलिटिकल हेड है, किंग जो है, वही इसको कंट्रोल करते हैं. और हर तरह के मीडिया को, इवन द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू विल बी हियरिंग थ्रू अ काइंड ऑफ pre-recorded, or you could say automatic voice messages that you receive on metro station, that is also controlled by his agencies, supervised by his agencies. You will be only hearing what he is talking to media, his conferences, his speeches, about his life, about what he is doing. Other than that, you won't be receiving any messages in North Korea from the media end.
the channels are banned, the websites are banned. So you can imagine that it's not just about the effect of mass media, it is also about the policy makers, it is also about those who are producing the messages. तो हम सिर्फ एक पॉइंट पे आके इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया को उसको कंक्लूड नहीं कर सकते कि उसका इफेक्ट ऐसा ही है. You take example of China. There you have somewhere around one person who is taking care of, or who is supervising, or who is controlling the message that the people are receiving. I guess it's one on every 10 citizens, something like that. The equation is like that. So you have one officer who is watching what you are doing, what messages you are receiving. They do not have access to a lot of websites, they do not have access to Facebook. They have to speak their own language. Even if you have to produce a film there, you have to get it approved. You cannot go on to just serve any content through media channels. If you're writing something in newspaper, this gets censored by their IT cells. तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है मास मीडिया का, वो ही वहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल में है मीडिया पॉलिसी मेकर्स के, और जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं उनके हाथ में. So the one who is creating the message has more or less negligible influence on the message he or she is making, and then that kind of message will have a very different effect on people. तो ये जो इफेक्ट का आइडिया है मास मीडिया को लेके, इसको लेके हमें और ज़्यादा कॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत है. नाउ द पॉइंट कम्स दैट व्हाई जस्ट इन द बिगनिंग ऑफ योर कोर्स हम लोग इतना डीप जाके इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन सी दैट राइट नाउ इन अवर कंट्री ऑल्सो वी आर विटनेसिंग different kind of political activities. People are protesting. Last year also people were protesting, and people have been using different media channels in a very different way. Not just the government that is controlling it, but also the parties in opposition, also the people, those who belong to left wing, the people, those who are against government, those who are with government. So there is a very different kind of control fight that is going on in our country also. And this fight of control is somehow linked with the fight these people are fighting on media platforms. They are trying to control the messages that the common masses are receiving. And why they are doing it? Because they want to increase the effectiveness of what they want to tell people. So you can see here कि यहाँ पर हम इफेक्ट के साथ साथ इफेक्टिवनेस की बात भी कर रहे हैं. मैं अगर चाहती हूँ कि आप एक टॉपिक के बारे में पर्टिकुलर चीज़ को समझें, और मैं चाहती हूँ कि उसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझें, तो यहाँ पर सिर्फ इफेक्ट नहीं है जो उस मैसेज का आपके ऊपर पड़ेगा, बल्कि मेरे पढ़ाने की इफेक्टिवनेस को लेके भी डिस्कशन हो रहा है. तो यही चीज़ हमें इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझना है. तो इतनी सारी जो ये पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया से, ये अगर हम बहुत सिंपल सेंस में सिर्फ नोट डाउन कर दें दैट इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया ऑन कल्चर एंड सोसाइटी, तो ये बहुत ही जनरलाइज हो जाएगा, और जनरलाइज करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है. वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल. So the first thing that we need to remember related to effects of mass media is this, that those who are questioning the influence, क्या उनको proper knowledge है या नहीं. Second thing, that those who are involved in making the messages, and those who are involved in making any kind of strategy and policies for media functioning in a country, वो किस तरीके से इसके साथ interact कर रहे हैं, और उनका क्या influence है, उनकी क्या authority है. नाउ द पॉइंट कम्स कि अगर हम इफेक्ट को लेके बात कर रहे हैं तो किस तीन सेंस में हम बात कर सकते हैं. सबसे पहला सेंस है इफेक्ट एंड इफेक्टिवनेस, जिसको लेके मैंने अभी भी बात करी कि किसी चीज का, किसी मीडिया मैसेज का इफेक्ट लोगों पर क्या है. दूसरा ये कि उसको किस इंटेंशन के साथ बनाया गया था, तो हम तब बात कर सकते हैं कि क्या वो उतना इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक नॉर्मल टीवी एड की, एक टीवी एड बनता है एक ब्रांड के लिए, लेट्स से जियो इज द ब्रांड और जॉकी इज द ब्रांड.
अगर इस ब्रांड के लिए एक ऐड बन रहा है, इफेक्ट लोगों के ऊपर क्या है कि क्या उस ऐड के आने के बाद से लोगों ने इसके प्रोडक्ट्स को, ब्रांड के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदना शुरू करा। दिस इज़ नॉर्मल। इफेक्ट क्या हुआ लोगों के ऊपर? इफेक्टिवनेस ये है कि किस इंटेंशन से वो ऐड को बनाया गया था। क्या इंटेंशन ये थी कि लोग उस प्रोडक्ट को लेके ज़्यादा मार्केट में परचेजिंग जो अपनी एबिलिटी है उसको बढ़ाएं? ये इफेक्टिवनेस ये थी दैट यू वर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट थ्रू दैट एड, तो वो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंची या नहीं पहुंची? सो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव यू आर ब्रिंगिंग टू द मैसेज, उसके बेसिस पे हम इफेक्टिवनेस की बात कर सकते हैं। और टीवी में ऐड अगर आया है तो इफेक्टिवनेस कितनी है, प्रिंट में आया है तो क्या रीच है, सो वी कैन टॉक अबाउट दैट, दैट इज इफेक्टिवनेस। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इम्पॉर्टेंट इज कि किस रेफरेंस पॉइंट को आपने लिया है टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हो कि पास्ट में इफेक्ट क्या था, तो पास्ट में क्योंकि चीज़ें हो चुकी हैं तो वहाँ पर आप रिसर्च करके, एनालाइज करके श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि इफेक्ट था या इफेक्ट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट पुलवामा अटैक की जब आई या लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, तो लोगों ने सडनली एक बहुत ही इंटेंस इमोशन के साथ एकदम रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, तो वहाँ पर इफेक्ट इंस्टेंट था और इंटेंस था। लेकिन अगर कोई फ्यूचर को लेके बात हो रही है दैट इन फ्यूचर इफ समथिंग लाइक दैट हैपन्स, तो फ्यूचर क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होता है तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप श्योरिटी के साथ बता सको कि इफेक्ट क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आप टाइम का ले रहे हो वो बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखना। श्योरिटी विल डिपेंड ऑन वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट और यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर और प्रेजेंट। देन द थर्ड पॉइंट इज sorry, the third point is when you are talking about effects of mass media in a sense कि वो किसके ऊपर हो रहा है, यानी कि लेवल क्या है, इंडिविजुअल है, ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी है या कल्चर है। एंड नाउ व्हाई दिस लेवल इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इंडिविजुअल के ऊपर इफेक्ट को एनालाइज करना, उसे कंफर्म करना इजी होता है और वो जल्दी भी किया जा सकता है। अगर मैं आप बच्चों को सभी को एक मूवी दिखाऊं और पूछूं that you know how you are feeling after watching this film or what would you like to do after watching this film, तो उसका इफेक्ट मैं एकदम मेजर कर सकती हूँ। लेकिन एक फिल्म या एक तरह की कुछ फिल्मों के आने के बाद एक सोसाइटी या एक नेशन या एक कल्चर किस तरीके से बदल रहा है, उसका इफेक्ट देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा फॉर ईयर्स। ओके, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर जस्ट देन एंड देयर। फॉर एग्जाम्पल अभी LGBTQ राइट्स जो है उनको लीगलाइज करा गया है, क्या हमारी सोसाइटी ने एकदम से उसको एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक ईयर्स फॉर पीपल टू टेक इट नॉर्मली। वो एकदम नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। स्टोरी सोली families will start accepting it, then only you will see the real effect of such kind of law, such kind of rule passed by the court। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जिस लेवल पे हम बात करते हैं वहां पर उसको मेजर करना मुश्किल या इजी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन लेवल कौन सा है। So this is about the 3 points that we need to remember when we are talking about effects of mass media. Now talking about the history of research, अगर हम research की history की बात करें जहाँ पर कि effects को लेके बात हुई है, तो आप मास मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख सकते हो कि मास मीडिया में जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है people have again and again questioned whether this is powerfully affecting the audience or not, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी अब यूज में आ रही है क्या ये लोगों को बहुत ही पावरफुल तरीके से इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा जब भी टेक्नोलॉजी में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल जब प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में तो इट वाज जस्ट जब गुटनबर्ग जो हैं उन्होंने अपनी खुद की प्रेस से बुक्स को लेके पब्लिशिंग स्टार्ट करी थी, तो वो कंटेंट जो है वो लोगों तक पहुंचना टाइम टेकिंग था। यानी कि books will get published, then people will buy the copy, then it will reach to very limited number of people, those who have bought the copies। तो इफेक्ट जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था, लेकिन फिर भी
लोगों ने इस चीज़ को लेके बात करी थी कि अब जब बुक्स पब्लिश हो रही हैं और लोगों तक और लोगों की ओपिनियन पहुंच रही है तो इसका इफेक्ट क्या होगा. देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू talk about reading habit in terms of a negative act done by individuals. न्यूज़पेपर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ना, ये भी नेगेटिवली देखा जाता था. ये टाइम भी ऐसा रहा है. यूरोप में बहुत सारे ऐसे पार्लर्स बने हुए थे जहाँ पर कि जो फॉरबिडन बुक्स हैं या जो बैंड बुक्स हैं उनको लोग छुप के पढ़ते थे. दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज वर डन बाय पीपल. तो ऐसे एक्ट्स भी रहे हैं. बुक्स को बर्न भी किया गया है उनके पर्टिकुलर कंटेंट के लिए. सो द पॉइंट इज नॉट दिस कि कभी ऐसा सिर्फ टीवी या फोन्स को लेके कॉन्टेक्स्ट में होता है, और कॉन्टेक्स्ट में भी इस तरह की बातचीत की गई है. तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जो हम प्रिंट्स की बात कर रहे हैं, प्रिंट के बाद जब धीरे धीरे रेडियो और फिल्म आने लगे तो लोग उनके इन्फ्लुएंस को लेके भी ऐसे ही बात करते थे. फिल्मों में काम करना, फिल्में देखने जाना, ये भी नेगेटिवली ही लिया जाता था और लोग ऐसे ही सोचते थे कि अगर वो आप देखने जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे या आप रेडियो ज़्यादा सुनेंगे तो इसकी वजह से आपका जो यू नो द काइंड ऑफ मोरल कंडक्ट यू डू इन अ सोसाइटी, दिस विल गेट affected and you won't be behaving in a decent way. You will turn into somebody who has loose morals. तो इस तरह के बातें भी हुई हैं और इसका यूज़ वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और ज़्यादा मैनिपुलेटिव तरीके से किया गया. तो बहुत तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो उठते थे इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया को लेके. फिर उसके बाद आपके टेक्नोलॉजी जो है ये रेडियो और फिल्म की, इसमें और एडिशन हुआ टीवी का. 1920s में टीवी के एडिशन के बाद 25 या 26 में जब टीवी का एडिशन हुआ था, उसके बाद जब धीरे धीरे लोगों के घर तक टीवी पहुंचने लग गया, प्रोग्राम्स पहुंचने लगे और एड्स पहुंचने लगे, तो एक नया ही मार्केट क्रिएट हो गया था, कंज्यूमर्स का भी और ऑडियंस का भी. तो वहां पर फैमिली तक रीच हो गई थी मीडिया की. तो आप देख सकते हो कि एवरी टाइम देयर हैज बीन एन एडवेंट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, people have always questioned whether it will be powerful or not. This has happened with all the other media. This is also happening with the digital media and the smartphones we are using. तो यहाँ जो रिसर्च की हिस्ट्री है, मास कम्युनिकेशन रिसर्च की हिस्ट्री है, उसमें आप phases भी देख सकते हो. एक वो टाइम था when in context of world war people were talking about that media is very powerful. Then there came a point when people were talking about that media is not that powerful because लोगों को ये समझ में आने लग गया था कि कोई मीडिया से मैसेज पढ़ते या देख के या सुन के ही एकदम से रिएक्ट नहीं करता है. वो अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने जानने वालों से बातचीत करते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर ही वो रिएक्शन देते हैं. सो दिस वाज अ टाइम व्हेन पीपल वर टॉकिंग अबाउट limited effects of mass media. And then again this point was kind of edited, kind of modified when people started talking about कि लोग जो है वो मास मीडिया का यूज़ अपने हिसाब से करते हैं. अगर मेरे को कोई फिल्म देखनी है तो मैं उसका ट्रेलर देख के डिसाइड करूँगी कि वेदर आई वुड लाइक टू गो एंड वॉच दिस फिल्म और नॉट. और क्योंकि मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही हूँ सिलेक्शन में, तो मेरे ऊपर इम्पैक्ट उस चीज़ का अलग पड़ेगा. सो पीपल ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ऑडियंस, its uses, its own selection process for media message that they want to receive. और इस तरीके से इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया को लेके अलग फेज में भी बात होने लग गई. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें हमेशा याद रखनी है इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में. और इसके दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है. नंबर वन, आपको ये कभी नहीं भूलना है कि एवरी टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, यू आर टॉकिंग अबाउट एनी मीडिया मैसेजेस, people will always question this thing, how powerful this is or what kind of effect it can have on people. This is the most simplest thing people will always ask. So you have to make sure that uh, you are okay with the question that is being asked. Okay, second thing is effects of mass media को बहुत ज़्यादा simple sense में ये generalize करके नहीं discuss करना है. We need to go into depth. We need to talk about किस level पे बात हो रही है, individual, culture, family, of organization, society, nation, और किस टाइम रेफरेंस में बात हो रही है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है. सो यू हैव टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप एंड देन टॉक अबाउट इट इन डिटेल. ओके.
Okay, so